और कैसे आपने अपने को किया? Good afternoon, everyone. Welcome to Heartcare Foundation of India, Dr. K.K. Agarwal Research Fund weekly session on Tuesday. We are live on various platforms, 20th July from 2 p.m. to 3 p.m. We are live on Zoom, 841-4731-1677. People who want to join in can come on Zoom and join this session. Today, we have a very, very interesting topic and experience to share. COVID warriors talks about their experience and fear. The reason we choose this topic, we can call them as COVID warriors. We can call them as COVID winners. We can call them as COVID survivors. And whatever you want to name them, you can all name them. But the fact is that they have gone through a very, very they've gone through a phase which I think nobody would have imagined a couple of years ago. It's a life-changing experience. People have lost life. People have lost loved ones. People have come out and helped also. So to introduce, we have two speakers with us. One is Mr. Neeraj Tyagi, and I would not like to introduce him with a very short line, but I think he has really suffered during this pandemic, but he is standing in front of us, educating people, helping people, and he is all back on his toes. So we will hear from him his life journey. We also have Mr. Sunil Masta, whom you would have already seen on our platform. In terms of helping, donating bloods, he have gone out during the COVID when people were scared to even step out and even collect the couriers. He was out helping people to donate plasma, donate blood. We also have with us Mr. Vivek Kumar, Heartcare Foundation of India trustee. He is joining in from Bangalore. So Vivek ji, can you speak about this on a couple of seconds, and then we can ask the experience which these people have shared and what they have to share with our audience. Namaskar to everyone. Personally, I feel this is a very, very important topic because all around COVID, there is a lot of fear. And a lot of people are getting even more sick because of anxiety than what is actually required. We have here two people who have fought the COVID, who have been through hospitalization, they have been through critical condition, and we would like to share the subject of how they have fought it with a very positive mind to come out of it, and how important is a positive mind and how important it is to fight. Today, many of us, including many doctors and all, can tell us in a very hypothetical manner that you can fight it like this, you can fight it like that. But suppose when we meet people who have fought through it in a practical way, it is going to further help us in understanding and preparing ourselves before the next wave hits India. Because as you all know, even the Prime Minister is talking that we need to take precautions. And unfortunately, a large part of our public has stopped wearing masks and has stopped doing the COVID protocol. And it looks quite definite that the next wave is going to hit India the way it has hit Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia, and United Kingdom. United Kingdom is already getting more than 40,000 cases a day. So, we in India need to prepare ourselves. And there are two ways. One is precautions, and the second is to fight it out. Precautions today, we have all been told. We are all aware what precautions to take. It is now up to us how we take the precautions. However, since a lot of people are being negligent and they're not taking precautions, we at Heartcare want people, if in case you do get COVID, how to fight it through. We have our free OPD sections, which are taking place every day between 4 to 7 in the evening. Anyone getting COVID, you can come and we will advise you how to overcome medically. Meantime,
I'll give, now it's time for Mr. Saurabh to coordinate and take it forward and introduce the two speakers of the day who have, in a very, like a warrior, have fought through COVID and come out of it and are present with us. And they will tell their stories to us. And this should help the others in overcoming COVID if in case you get. Thank you. Thank you, Vivek ji. Before I can invite him, I would like to tell some statistics which people, I'm not trying to make a fear out of it, but I'm just trying to say, आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, उससे आप लोग बच सकते हैं. And I think Neeraj ji will be able to tell us what it is. But 3 करोड़ केसेस इंडिया में आ चुके हैं, जिसमें से 4 लाख के करीब डेथ हो चुकी है. वर्ल्ड वाइड 19 करोड़ केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 41 लाख डेथ हो चुकी हैं. India being the number 2, we would like to be number 1, but not on this platform, but all other platforms where, as a shining star, this is not a platform where we need to be number 1 or number 2. आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है: social distancing, masking, and hand hygiene, washing. सिर्फ you have to make sure that all these things are there. Once this is there, I don't think any virus can impact us. And उसके बाद अगर होगा भी तो we as doctors, NGOs and all those people are there to help you out. So Neeraj ji, we will start from you. Before you can unmute yourself, would you like to start what happened with you? What really happened, and how did it went? कब हुआ था? And yes. I also believe you have lost people in your life. So yes. Please share that experience with us. It was just it was an unexpected thing with me, because I was involved with each program of HCFI. I listened to Dr. K.K. Agrawal's hints, जो वो हमें बताते रहते थे बीच बीच में, सुमन के और बहुत सारे फार्मूलेज. तो मैं, बल्कि जो दूर दूर से मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आने लगे थे, और जो रिमोट एरियाज़ में, लखीमपुर जैसे एरिया से मेरे पास फ़ोन आते थे, बीमार होते थे, वहाँ हॉस्पिटल नहीं होते थे, तो मैं उनको गाइड करता था कि आप ये प्रिकॉशन लीजिए, और मैं खुद भी ले रहा था प्रिकॉशन. लेकिन अब पता नहीं कहाँ से मुझे लगभग जो 1 मई है, मई का जो फर्स्ट वीक है, वहाँ 1 तारीख को मुझे एकदम से थकान महसूस होनी शुरू हो गई. मैं अपनी गाड़ी में, अभी मैं अकेले ही घूमता था. अब या तो वो वायरस, वैसे कहा था कि वो शायद एयर में हो गया है, कहाँ हुआ, एयरबोर्न हो गया. उस समय एकदम से वेव चली, और 1 मई को मुझे थकान महसूस हुई. नेक्स्ट डे फीवर हो गया 2 मई. तो घर में सबने पूछा मैंने कि भाई ये क्या चक्कर है. मैंने कहा भाई मुझे तो लग रहा है कि ये कोविड ही है. और वो सब लोग थोड़ा सा कॉशियस हो रहे थे, लेकिन उन सबको भी हो गया, फैमिली में जितने भी लोग थे. मेरी मदर को 84 इयर्स ऑफ एज, HCQ वगैरह भी ले रही थी, उनको लूज मोशन शुरू हो गए, तो मैं समझ गया कि इनको भी इफेक्ट हो गया है. और मेरी वाइफ, उसको भी फीवर हो गया, दोनों बेटों को. तो हम लोगों ने, खैर क्योंकि वो मेरे छोटे भाई को भी हुआ था, वो घर में ही ठीक हो गया था, हमने पूरा मेडिकेशन शुरू कर दिया, जो भी दवाएं वगैरह थी, एंटीबायोटिक्स और जो स्टीरॉइड्स वगैरह, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंग. लेकिन 10-11 तारीख तक मेरा जो है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होने लगा, और वो 90 से नीचे जाने लगा. तो फिर एडवाइस यही थी कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए. मैं लकीली वहाँ पे हॉस्पिटल में जगह मिल रही थी, तो एक फ्लोर्स हॉस्पिटल है, वहीं पे मैं एडमिट हो गया. वहाँ पे हाई फ्लो ऑक्सीजन मिली, तो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, वहाँ ऑक्सीजन अच्छी मुझे मिलने लगी. लेकिन 1-2 दिन में ही फिर 74% पे मेरी ऑक्सीजन आ गई. अब वो मेरा जो यंगर ब्रदर था, उसको उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर्स ने कि भाई ही इज़ क्रिटिकल, ही इज़ वेरी सीरियस. तो मुझे फिर मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार, वहाँ पे शिफ्ट किया गया एम्बुलेंस के द्वारा. तो वहाँ मैं प्रीत विहार में जब गया, हालांकि मुझे अंदर से जो है ना फीलिंग, मैं बड़ा पॉजिटिव था, और मुझे लग रहा था कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, हो सकता है हैप्पी हाइपोक्सिया हो. वहाँ भी लोगों ने मुझे जाते एकदम से आईसीयू में डाल दिया, और हाई फ्लो ऑक्सीजन दी, तो वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई. लेकिन फिर जो है
वहाँ पे मेरी ऑक्सीजन फिर गिरनी शुरू हो गई। और फीवर तो अब नहीं था, हॉस्पिटल में जाने के बाद फीवर बिल्कुल नहीं था। वो पूरे स्टीरॉइड्स और जो प्रोटोकॉल होते हैं उन्होंने इंट्रावेनस वो देने शुरू कर दिए। और जो एक वहाँ पे नया इंस्ट्रूमेंट जो मेरे लगाया, बाईपैप बोलते हैं जिसको, NIV, वो उन्होंने लगा दिया। उसमें बड़ी मुझे सफोकेशन सा महसूस होता था, शुरू में लगता था कि बड़ा अजीब सी चीज़ है, बड़ा मुझे ख़राब एनवायरनमेंट लगा। और बीच में मैंने बाईपैप निकाला, नर्स ने दिखाया देखिए मॉनिटर पे आपकी कितनी ऑक्सीजन आ रही है, और मुझे चेस्ट में पेन महसूस हुआ एकदम से बड़ी तेज। मैंने पीछे देखा मॉनिटर में तो 63 ऑक्सीजन आ रही थी। तो लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। मैं थोड़ा सा बोला कि नहीं नहीं ये बाईपैप मुझे नहीं लगाना, लेकिन वो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं आप लगाइए, यही आपका जो है प्रोटेक्शन का है। तो वो बाईपैप मैंने लगाया और बड़ा ही मुझे ऐसा, लेकिन मैं निगेटिव नहीं हुआ। आई स्टार्टेड प्रेयर, और मुझे ये लगा कि कुछ ना कुछ मेरे साथ जो है ना, आई एम बिकमिंग बेटर डे बाय डे, इस तरह का सेल्फ अफर्मेशन मेरा रहा। और निराश मैं नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अंदर से ही फीलिंग नहीं थी कि मेरे साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। मेरी जो आस्थाएं थी, जो मेरी बचपन से आस्थाएं थी, मैंने उनको सबको याद किया, जो भी मेरी श्रद्धा जिन लोगों में थी। हालांकि उन्होंने फिर मेरा CT स्कैन किया। जो CT स्कैन वहाँ आने से पहले 10 या 11 दिखा रहा था स्कोर CTSS, वहाँ पे 22 आ गया, 22 आउट ऑफ 25। बोले इट इज़ वेरी क्रिटिकल, कह रहे आपका तो लंग्स बिल्कुल गए। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अब ये होता है कोविड में, फीलिंग नहीं होती, लेकिन अंदर से इन्फेक्शन जब फैलते हैं तो बाद में उसके रिपरकशंस बाद में ही पता लगते हैं। छोटे ब्रदर ने फिर अपोलो में बात की, लेकिन वो मेट्रो वाले बोले कि हम दूसरी किसी डॉक्टर की सलाह नहीं, हम अपना ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो उन्होंने जब एश्योर किया कि वो ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहाँ पे फिर ब्रदर ने बोल दिया कि हाँ ठीक है आप कंटिन्यू करिए। तो वहाँ नेक्स्ट 2-3 डेज में मेरा 10% रिकवरी हो गई। तो वो देवर सरप्राइज्ड, ये तो मिराकल हो गया, ये कैसे आपकी रिकवरी हो रही है। फिर अगले दिन वो फिर डॉक्टर आए, बोले आपका 5% और रिकवरी हो गई है। लेकिन मेरी पोजीशन ये थी कि मैं बेड पर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था, और एकदम से सांस फूलती थी। अगर मैं करवट भी लेता था तो एकदम से सांस फूलती थी, और मुझे उसी पोजीशन में बस ठीक लगता था जिस पोजीशन में मैं हूँ। तो लेकिन एक कभी कभी बीच में डिप्रेशन होता था, क्योंकि मेरा मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया था। बेड से मैं उतर नहीं पाता था, अपनी मनमर्जी से उठ नहीं सकता था। लेकिन ये था डॉक्टर्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मॉरल बूस्ट किया। वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वो डेली मुझे बूस्टअप करते थे। तो ग्रेजुअल मेरा जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। और वो जो इम्प्रूवमेंट था, मुझे लगता है मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड से हुआ। मेरी जो प्रेयर्स थी, मैं प्रेयर्स भी करता रहता था कि कुछ जो है मुझे और लाइफ का थोड़ा सा और टाइम मिले, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन, मुझे वेंटिलेटर के पास ही बेड दिया हुआ था डॉक्टर्स ने। वहाँ पे डेली मैं लोगों को मरते हुए देखता था। उसमें रश बहुत था, मई का फर्स्ट वीक था, इतने लोग आते थे, यंग लड़के वहाँ बात करते करते एंड उनकी ऑक्सीजन, वो अनकॉन्शियस हो जाते थे। तो मैं बल्कि उनको बूस्टअप करता था कि मैंने कहा भाई, एक सरदार जी थे, मैंने कहा आपके तो गुरु जो है बहादुर रहे बहुत, पूरे दुनिया में उन्होंने नाम कमाया, आप पे हिम्मत हारे हो। और वो बात करते करते ही उनका मामला खत्म। तो बड़ा डिप्रेसिंग पोजीशन, मैंने डॉक्टर से कहा मैं कहीं वेंटिलेटर के पास से मुझे यहाँ से हटाइए। तो डॉक्टर बोले भाई ICU में तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सबके लिए प्रेयर्स, उनके मॉरल बूस्टिंग, तो लोग समझते थे कि मैं तो क्रिटिकल नहीं हूँ, ये तो खुद जो है दूसरों को बूस्टअप कर रहा है। हालांकि मेरी पोजीशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थी। शुरू में डॉक्टर ऋषभ थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था आपके 3 दिन है बस लाइफ के, ये 3 दिन आप देख लीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा चलो मैं देख लूँगा। लेकिन जब मैं प्रेयर करता था तो मुझे जिस जिस में आस्था थी वो सारे, अब उसे इल्यूजन कह लीजिए, वो सब दिखाई देते थे। और वे यही बोलते थे कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा, यू विल बी ऑल राइट। तो धीरे 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 मैं इम्प्रूव होता चला गया। उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स, कॉस्टली जो भी दवा थी वो सिंपली देते रहे। मुझे ध्यान एक निंटेना या क्या थी कुछ,
वो भी उन्होंने कंटिन्यू की, और मैं इतना इम्प्रूव हो गया कि वो स्पाइरल एक एक्सरसाइज स्पाइरल से कर करके मेरे जो लंग्स थे वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए। तो फिर मैंने डॉक्टर से फिर कहा, मैंने कहा मुझे यहाँ से निकालिए आईसीयू से, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। रात को बड़ा वहाँ पे शोर शराबा भी होता था। उसमें एक दो पेशेंट थे जो मेंटली डिरेंज थे, तो वहाँ मैं बड़ी डिस्टर्ब। तो उन्होंने फिर आफ्टर ऑल मेरा सुना और जनरल वार्ड में मुझे शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे मैं ज़बरदस्त फिर मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपको, मैंने कहा मुझे अब डिस्चार्ज कर दीजिए, हो सकता है मैं घर पे मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, घर पे आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। मैंने फिर उनसे बगैर पूछे नाइट में ऑक्सीजन निकाल दी। मैं कहा देखता हूँ क्या होगा। अगले दिन देखा तो मेरा 95 96 बिना किसी सपोर्ट के अपने आप ऑक्सीजन आ रही थी। देन दे एग्रीड कि अरे आप तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। उन्होंने कहा ठीक है आप डिस्चार्ज। मैंने कहा हाँ आज ही कर दीजिए मुझे डिस्चार्ज। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि मैं चल फिर नहीं पा रहा था, बिल्कुल जैसे हैंडीकैप हो जाता हूँ। तो डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि भाई आप घर पे फिर फिजियोथेरेपी या कुछ कराइए और हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मैंने ब्रदर को फ़ोन किया। नेक्स्ट डे उन्होंने वो अपने डिस्चार्ज वगैरह बना के और मुझे घर के लिए मैं जब आया तो यहाँ पर मेरा फास्ट इम्प्रूवमेंट हुआ। और लेकिन एक मेरे साथ जब मेरे कुछ जो न्यूज़ थी वो छुपाई गई। मेरी जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई थी इन बिटवीन उसी हॉस्पिटल में। तो वो मुझे जानबूझ के नहीं बताया कि भाई आपको डिप्रेशन हो जाता, आप शॉक में चले जाते। शी कुड नॉट सर्वाइव, माई मदर कुड नॉट सर्वाइव, शी वॉज ऑल्सो एडमिटेड इन मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर टोल्ड कि शी इज़ 84 ईयर ओल्ड एंड फाइब्रोसिस एट्सेट्रा, शी कुड नॉट बी क्योर्ड। हालांकि बड़ा उस पर हमने ट्राई किया है, साकेत की जो मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ से भी कंसल्ट किया था, बट शी कुड नॉट बी सेव्ड। वाइफ का बड़ा ट्रेजिक हुआ, वो बड़े फास्ट इन्फेक्शन हुआ, और ट्रेजिक ये था कि मुझे बताया नहीं गया वहाँ पे। तो उसके बाद थोड़ा दिन में यहाँ घर पे भी शॉक में रहा, और यहाँ फिजियोथेरेपी के थ्रू अब आज की डेट में मैं आई एम सक्सेसफुल इन वॉकिंग ऑल्सो। अब 15 जून को मैं डिस्चार्ज हुआ था। आज पॉसिबल हो पाया कि मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट चल सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे मेंटली अपने को स्ट्रांग बनाना पड़ा। किताबें रखी हुई हैं अपने में, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कोई गीता या कुछ भी, या पॉजिटिव स्पिरिचुअल चीज़ें। काफ़ी सबक भी मिला है, लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं हमारी भूल तो होती है या कहीं मिस्टेक हुई है जो हमने इतनी बड़ी ट्रेजेडी लाइफ की। मुझे लगता है इससे बड़ी दुर्गति जो स्वर्ग और नरक बचपन में कहते थे, वो नरक मैंने देखा वहाँ हॉस्पिटल में। लेकिन स्वर्ग भी देखा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब मैं प्रेयर करता था तो वो नज़र आते थे सामने, जितने भी हमारे गॉड्स थे, ले वो हमेशा पॉजिटिव ही बोलते थे। तो उनकी वजह से मुझे लगा कि हमारी जो विल पावर है और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी हीलिंग में। क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि मेरी कंडीशन में और जितने भी लोग थे दे कुड नॉट बी सेव्ड, कि मैं ही अकेला हूँ जो थोड़ा बच पाया हूँ। तो आई एम हैप्पी नाउ, बट लेकिन जो चीज़ें उनको बदल नहीं सकते, कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ ऑल ड्रामा ऑफ लाइफ। तो बट हमें आगे का सोच के चलना है इसी के साथ। फिर हाँ, डॉक्टर साहब का भी मुझे बाद में बताया, अग्रवाल साहब की एक्सपायरी भी वो भी छुपाई गई, क्योंकि मैं उनकी बातें बड़ी होती रहती थी घर में भी, और उनसे काफ़ी वो भी चाहते थे कि मैं जाके उनसे वहाँ पे मुलाकात हो, कुछ आगे प्रोग्राम बने। उनके साथ सीपीआर का प्रोग्राम किया था, तो वो बड़ा मुझे वो भी शौक लगा। मैं कि अग्रवाल साहब चले गए, उनका ये टाइम नहीं था जाने का, ये तो वो और गाइड कर सकते थे लोगों को। तो ये मेरी अभी छोटी सी कहानी है, लेकिन मैं इसको एक सोच रहा हूँ एक मिशन की तरह। अभी हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और आगे लोगों को अवेयरनेस बढ़ाते रहेंगे इस बारे में कि नीरज जी ना झुकेंगे ना मिटेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे वॉरियर की तरह। वॉरियर की तरह। नीरज जी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और बहुत बुरा लग रहा है, दोनों चीजें हैं। अच्छा ये लग रहा है कि आप आज भी, आपके चेहरे पे स्माइल है,
और आप बेटे एक बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव। बेटे को हो गया था, बेटी बिल्कुल ऑल राइट। अब कितने साल की बेटी है आपके? नहीं नहीं, दोनों बेटे हैं, वो मल्टी एमएनसी में भी, एक 24 ईयर्स है, एक 25 ईयर्स, ऐसे ही है अभी। और आप क्या करते हैं? मैं आप सेफ्टी का हेड हूँ इसमें, पावर डिपार्टमेंट दिल्ली में। सारे जो तीनों प्लांट की जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसका हेड मुझे बनाया हुआ है। तो बहुत लोग नहीं जानते, नीरज जी डॉक्टर के अग्रवाल के साथ काफी सारे शोज में आ चुके हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर अभी भी हमारे साथ कर रहे हैं। और कौन ऐसा होगा जिसने अपनी मदर को, अपनी वाइफ को और अपने गुरु को, तीनों को खोया होगा जब वो हॉस्पिटल में होंगे, जब आए होंगे तो कैसे शॉक होगा। बट अगेन एक चीज से मैं सहमत नहीं हूँ जो आपने करी थी, जिसके लिए वजह से मैं आपको डांटना चाहता हूँ कि आपने ऑक्सीजन बिना डॉक्टर से पूछे निकाली थी। अब वो आपकी किस्मत अच्छी है कि उसमें ये आपकी वो ऑक्सीजन डिपेंडेबिलिटी, बट आई स्टिल वुड, विद दिस फोरम आई वुड स्टिल सजेस्ट पीपल टू लिसन टू डॉक्टर्स। एंड कई बार होता है कि अपने अंदर नहीं, से मुझे बहुत लगा कि कुछ। कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो मैं देखूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई रात को। हाँ, तो वो आपकी किस्मत अच्छी थी उसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर कोई ऐसा किस्मत वाला नहीं होता। एंड आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ एक और हैं सज्जन जुड़े हुए, सुनील मस्ता जी। जी इनकी भी एक अलग ही कहानी है, जो इनको कोविड भी हुआ था, लेकिन हमने इनको कोविड के लिए नहीं बुलाया, इवन दो वो अपनी कोविड की जर्नी भी शेयर करेंगे। बट ये वो इंसान है जो सड़कों पे घूम रहे थे और लोगों को खून दे रहे थे इस समय। प्लाज्मा। काफी लोग डरे हुए थे और कोशिश कर रहे थे लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे बैठे। लेकिन ये इन्होंने एक टीम बनाई। तो सुनील जी, बिना टाइम लिए मैं आपसे आपका पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या करा और हाँ, किस तरीके से आप बात करोगे। नमस्ते जी। मेरा नाम सुनील मस्ता है और मैं फरीदाबाद से रहता हूँ। और फरीदाबाद में मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा फरीदाबाद का माहौल है कि सोशल वर्कर्स बहुत हैं और हमारी पहले से ही एक ब्लड डोनर्स की टीम है। तो कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को ब्लड, क्योंकि देखिए डिमांड तो कम हो गई थी ब्लड की, लेकिन जैसे डिलीवरी केसेस हैं और कुछ और केसेस हैं उसमें ब्लड डोनेशन, और रेयर केसेस हैं उनमें रेयर ब्लड की डिमांड आ रही थी। तो हम लोग कोविड के टाइम में भी हमने अप्रैल मई में ब्लड कैंप्स लगाए थे और उनसे ब्लड डोनेशन भी इकट्ठा कर रहे थे। और मई में मुझे कोविड हुआ था पहले टाइम में, जब लास्ट ईयर 2020 में। वो टाइम था जिस टाइम कोविड के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन मेरे को लकीली क्या था कि मैं डॉक्टर अग्रवाल साहब के मार्च से ही जुड़ गया था। उनका जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, मॉर्निंग दरबार, तो मेरे को एक अवेयरनेस मिल रही थी और मैं अपनी टीम में भी, लोगों को भी, परिवार को भी, सबको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा था कि इससे बचने की कोशिश कैसे करी जाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मई में मेरे को हुआ तो डॉक्टर साहब ने उस टाइम एक प्रोटोकॉल बना रखा था कि आप अपने रिसर्च क्या कहते हैं, रिस्क एनालिसिस करिए अपनी फैमिली का। मेरे पेरेंट्स हैं दोनों 75 ईयर से ऊपर, तो उनका कैसे करना है, बच्चे हैं, वाइफ है, कैसे, तो वो एक कर रखा था। तो मैंने पेरेंट्स के लिए आज तक, अभी मतलब आप ये देखिए आगे, तो उनका एक पूरा एरिया घर में अलग कर रखा है। और मैं अभी भी मतलब उनसे बैठ के बात करता हूँ तो घर में कई बार लोग हंसते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बाहर आता जाता हूँ अभी भी मैं मास्क लगा के बात करता हूँ उनसे। मतलब वो एक बोला जाता है ना कि जीरो टॉलरेंस रूल्स में, तो वो कोशिश हमारी अभी रहती है। तो उसी वजह से क्या करते हैं कि अभी सेकंड वेव में भी सबको मैंने घर में बचा पाया किसी तरह से। और मेरे को हुआ जब मेरे को उस टाइम इतना डरावना था कि वो भूलते नहीं, उस टाइम में आपको शायद मीडिया पे देखते थे, पुलिस और एम्बुलेंस घर पे लेने आ जाती थी। तो मेरे घर भी पुलिस और एम्बुलेंस आई थी लेने के लिए, पर किसी तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके अपना, हमने उनको दिखाया कि मेरे पास घर में पूरा आइसोलेटेड एरिया है, सेपरेट है, और मेरी जिम्मेवारी है घर में फैलने का, अड़ोस पड़ोस में भी दूर है बाउंड्री वाज का, कि ये नहीं है कि पूरे ब्लॉक में फैलेगा। तो फरीदाबाद में मैं पहला था जिसको घर पे आइसोलेट करने की परमिशन उस टाइम उन्होंने दी थी, नहीं तो तब तक ले जाते थे, क्या बोलते हैं, हम उठा के ही ले जाते थे। तो उसके बाद मैंने सारा जो डॉक्टर साहब ने बताया था ना, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए उनके, और सारा ट्रीटमेंट भी डॉक्टर साहब के उसी में था मेरा। लोकल तो दिखाया ही था, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताया था, और डॉक्टर साहब ने उस टाइम में हमारे को अश्वगंधा और ये दूसरी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बताया था। और उनकी वजह से, और ये जो ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीमीटर का, 6 मिनट वॉक का, ये सब चीज कर रहा था। तो जैसे अभी इन्होंने, भाई साहब ने बताया ना, सांस की प्रॉब्लम मेरे को भी थी लास्ट तक, लेकिन
किसी तरह से सरवाइव किया था कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, लेकिन सांस बहुत फूलती थी। उठ के आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप करी थी? ऑक्सीजन मेरी 90 तक गई थी। 90 तक गई थी? हाँ, पर मतलब क्योंकि मेरे को लगता है कि उस टाइम डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां बताई थी, जिससे मैं क्योंकि वो नॉन कन्वेंशनल है, यहाँ पे नहीं बोलूंगा। तो सुनील जी, आपने जो आपको जो कोविड हुआ था वो घर पे बैठे बैठे हुआ था, या जो आप कर रहे थे नहीं, काम? मैं बाहर बाहर जाता था, क्योंकि बाहर जाते थे? हाँ, बाहर जाता था, क्योंकि क्या था कि काम भी था घर से भी, और वो एक मैंने रूल कर रखा था कि घर से और कोई नहीं जाता था बाहर किसी भी काम के लिए ना। और अभी भी आज तक भी मैंने कर रखा है कि अपने घर से कि कोई भी काम है तो मार्केट का, शॉपिंग का, सब मैं ही करता हूँ। ओके। सो आप घर जब आते थे तो आपके घर में कौन कौन है आपके घर में? हाँ सर, मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों 75 ईयर से अबव हैं। मेरे फादर एक्चुअल में सीनियर एडवोकेट हैं फरीदाबाद के। वो 23 मार्च को जब पहला लॉकडाउन किया था, उस दिन के बाद से वो घर नहीं निकले हैं। और उनके पास उनके क्लाइंट्स के, बहुत सीनियर क्लाइंट्स के, और उनका आता है तो उनको जीरो टॉलरेंस कर रखी है कि आपने जो भी कंसल्टेशन लेनी है फोन पे ही ले लीजिए। वो ना कोई फाइल देखते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे को बेटे ने जैसे कह रखा है, मैं तो, वो कई बार मजाक करते हैं, छेड़ मारते हैं कि मेरे को मेरे बेटे ने नजरबंद कर रखा है, पर कहते हैं कि बिल्कुल जो अच्छा जरूरी भी है। है। हाँ, तो जरूरी भी वो, है। हाँ जी। तो हम जो रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे अगर आपको बाहर जाना भी पड़े तो आप यू मेक श्योर दैट you know you are mask is there, you have social distancing is there. अदरवाइज ऑल्सो जब आप घर आओ तो आप मेक श्योर कि आप अपने कपड़े जो है वो चेंज करो, एक शावर ले लो अगर आप किसी से मिलना चाह रहे हो घर में। बट अगर आप बहुत ज्यादा मतलब अगर कोई वेव के अंदर आप बाहर निकल रहे से अभी, तो फिर भी यू नो इतना ज्यादा है नहीं अभी, बट प्रिकॉशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने कितनी बारी ब्लड डोनेट किया हुआ है कोविड के पीरियड में? मतलब मैं रेगुलर करता हूँ। कोविड के पीरियड में ब्लड तो एक ही बार दिया था, क्योंकि वो 3 महीने में एक बार दे पाते हैं जैसे ब्लड। तो वो मेरा बी नेगेटिव रेयर ग्रुप है। ओके। तो वो आपने प्लाज्मा कितनी बारी डोनेट किया था? प्लाज्मा मैं 17 टाइम्स दे चुका हूँ। 17 मैंने बारी आपने 17, प्लाज्मा डोनेट हाँ किया था? 17 बार प्लाज्मा दिया था। ओके। और टोटल में ब्लड 75 टाइम्स से ऊपर अब तक दे चुका हूँ। मेरा आपने अपनी लाइफ स्पैन में 75 बारी ब्लड दिया, तो से आपके ऊपर, मतलब उससे ऊपर ही दिया है सर। वो भी एक बार इंसिडेंट हुआ था, मैं नोट करता था तो कुछ साल पहले वाइफ ने बोल दिया था कि एक तरफ तो बोलते हो कि ब्लड डोनेट करते हो, फिर नोट भी करते हो। तो उस 75 के बाद मैंने नोट करना बंद कर दिया था। तो प्लेटलेट्स भी तो मैं अभी कई बार दे चुका हूँ। प्लेटलेट्स भी ये अपने राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। यहाँ मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। लॉकडाउन से पहले हुआ था। मैंने 2008 में एक कैंसर पेशेंट बच्चा था, तो उसके लिए दिए थे प्लेटलेट्स। देने जाता था मैं, और उसको मैंने लगभग शायद 15 या 20 बार से ऊपर प्लेटलेट्स दिए थे। और ये 23 मार्च लास्ट ईयर, लॉकडाउन से पहले, उसके फादर का फोन आया मेरे पास कि वो लड़का अब दुबई में है, और लगभग शायद 18-19 मार्च को उस लड़के के बेटा हुआ था। तो वो मेरे को गुड़गांव मेरे ऑफिस में मिठाई देने आए थे कि भाई आपके उसके। तो ये चीजें बड़ी खुशी देती हैं और हिम्मत देती हैं आगे लोगों को हेल्प करने में। सो नीरज जी आपके साथ दोबारा आएंगे। तो डिप्रेशन आपने बोला था, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है जो आज की तारीख में everybody is facing, not only the elderly people, not only the mid group segment people, but also the youngsters today। बहुत ज्यादा है। तो आप डिप्रेशन के समय आपने किस तरीके से, आपको जब लगा कि आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हो, तो उस समय आपने ऐसा क्या करा कि आप उस, मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि आप डिप्रेशन के अंदर नहीं जा गए और आप पॉजिटिव एटीट्यूड से आप बाहर निकले? हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिप्रेशन हुआ नहीं, डिप्रेशन आता है इसमें, लेकिन वही चीज है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मजबूती देनी है, और कम्युनिकेशन जरूर रखना है अपने साथियों से भी और सबसे, घर में, परिवार में। और मैंने एक चीज देखी है अपने एक्सपीरियंस के बाद, मैंने लोगों, जब मैं इस बीमारी से निकलने के बाद मैंने कोशिश की है कि जितने लोग बीमार होते थे कंसल्ट में अपने, उसमें उन लोगों से बात करना, उनको हिम्मत बढ़ाना, और ये शो करना कि भाई कुछ नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीज, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे एक रिलेटिव थे और उनका बेटा मेदांता में एडमिट था, और उसका लंग्स का स्कोर बता रहे थे कि 24/25 कुछ ऐसे मैक्सिमम जो होता है।
कि वो इतना स्कोर है, तो बड़े डिप्रेस हो रखे थे। मैंने उनको बताया नहीं ऐसी बात नहीं अंकल, आप चिंता मत करिए, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। और आप 3 दिन उनसे लगातार मेरी बात हुई, तो उनके बातचीत करने के तरीके में फर्क आ गया था, और भगवान की दुआ से वो बेटा बच भी गया और अभी ठीक हो रहा है, रिकवरी कर रहा है। और ऐसे कई रिलेटिव हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होके आए हैं, और काफी उनको डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन वो हिम्मत से रिकवर करके आए हैं और अभी घर में भी ठीक हैं। और यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन को हावी ना होने दिए, क्योंकि वो भी एक आपका ट्रीटमेंट में योगदान देता है कि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका हेल्थ जल्दी रिकवरी में मदद मिलेगी। नीरज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मेरे एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो मेरे तो से तो मोबाइल ले लिए गए थे सारे, और मुझे तो बिल्कुल जैसे मैं डिटेंशन में होता हूँ ना, कोई कांटेक्ट बाहर की दुनिया से नहीं था। कभी कभी मैं पड़ोसी का मोबाइल लेके ही बाहर पूछता था कि आज की खबर क्या है, तो एक आध खबर मुझे वो बताई जाती थी। लेकिन मुझे इस समय जो डिप्रेशन भी जब होता था, तो मुझे जो पढ़ा लिखा था पुराना, उसकी जो एक मैंने मर्फी की बुक पढ़ी हुई थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो मैं सेल्फ अफर्मेशन में जो सेंटेंस बोलता था वो बड़े पावरफुल इम्पैक्ट डालते थे। मैं हमेशा ये बुदबुदाता था, आई एम गोइंग टू बी बेटर एंड आई एम बिकमिंग बेटर डे बाय डे, और मैं ठीक होता जा रहा हूँ। इस तरह से जो है सेल्फ अफर्मेशन एंड प्लस प्रेयर, मन मन में जो भी है उसको मैं दिल से प्रेयर करता था, और बाहर का तो बिल्कुल दुनिया कट ऑफ थी। तो इन सब चीज़ों से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। बाद में हॉस्पिटल वालों ने जो लास्ट डे में 1-2 दिन साइकियाट्रिस्ट को मेरे साथ लगाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो, उसके बाद तो मैं डिस्चार्ज ही हो गया। तो लेकिन जो भी मदद मिली मुझे, मेरे इनर जो भी मैंने सीखा था अब तक लाइफ में, और जो मेरी आस्थाएं थी, हम कभी कभी बोलते हैं ना कि नास्तिक होना चाहिए जी, लॉजिकल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आस्थाएं ही इस क्रिटिकल टाइम पे एक तिनके की तरह के लिए एक ये सहारे के रूप में आ जाती हैं, और हमारे सबकॉन्शियस जो पावरफुल है वो हमारी बॉडी की हीलिंग करता है। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं उनका फिर डॉक्टर भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाए। तो मुझे लगा सबकॉन्शियस माइंड की पावर ने ही मुझे निकाला है वहां से। तो नीरज जी, आपका आपका जो पहले कोविड से पहले वेट और कोविड के दौरान वेट कितना फर्क आया था? 14 किलो का फर्क आ गया है, 14 किलो। जी जी जी। अब मेरा 59 या 60 है। तो 14 किलो बहुत ज्यादा होता है, और वीकनेस भी काफी हुई होगी बहुत तो ज्यादा। अभी मैंने आपने बोला कि आप अभी वॉकर के थ्रू इस समय कितने दिन हो गए आपको रिकवरी हुए है? पूरी रिकवर में आज के दिन पहली बार मैं विदाउट वॉकर चल पाया हूँ थोड़ा सा, और वो भी फ्यू स्टेप्स। कल तक मैं वॉकर से थोड़ा बहुत चल पा रहा था। और आप हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए थे? हॉस्पिटल से मैं 15 जून को हुआ था, 15 जून। 15 जून, तो ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर। और अभी आप जैसे बच्चा चलता है, तो आज पहली बार आप बिना वॉकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, अटेंडेंट रखा हुआ है, वही सब। मतलब बड़ा एक ऐसा फेज, हालांकि मैं जो डॉक्टर्स ने कहा उससे तो पहले ही मेरी रिकवरी हो रही है। वो कह रहे थे 3 महीने से 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अभी 3-4 दिन जो अभी आने वाले हैं ना, उसमें फुल फ्लैज में चलने लगूंगा। तो आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हैं, जैसे कि हमारे दर्शक? हाँ, प्रोटीन से एक तो प्रोटीन पाउडर आता है, दालें वगैरह हैं, राजमा है, और बहुत ही हैवी प्रोटीन वाली चीज़ें ले रहा हूँ। नारियल का पानी है, या कीवी का फ्रूट से मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। जब भी मैं उसको खाता हूँ कीवी, तो एकदम बॉडी में बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और लगता है कुछ ताकत सी आ गई है। तो फ्रूट्स में पपीता, कीवी, अनार है। प्रोटीन में जैसे अंडे की सफ़ेदी का जो पार्ट है ना, वो केवल मैं ले लेता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। हालांकि हाँ, एक चीज़ और है, बीच में मुझे बीपी और इनकी शुगर की दवा इन्होंने, क्योंकि स्टीरॉयड से शुगर बढ़ जाती थी, तो इन्होंने इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर दिया था। अब तो स्टीरॉयड बंद हो गया, 1 हफ्ता हो गया है। लेकिन तो अभी आप मेडिसिन पे हैं? किसी मेडिसिन पे हैं? रेगुलर मेडिसिन? हाँ, अभी मेडिसिन चल रही है, वही निंटेना जो टैबलेट है, और एक एंटीबायोटिक और है। और कब तक चलेंगे मेडिसिन? क्या बोला है उन्होंने? वो कह रहे हैं क्या आपको अभी बुखार आता जाता है, कुछ ऐसा है, या फिर अभी? बुखार तो हॉस्पिटल में भी नहीं था। ऑक्सीजन, और अभी ऑक्सीजन आप लेवल चेक करते हैं या वो अपने रख दिया अंदर? ऑक्सीजन वो मैंने रखा हुआ है, ये ऑक्सीमीटर।
क्यों रखा हुआ है इसको? आपको अपने अभी कम आता है या फिर शौक, मतलब आदत पड़ गई है? आदत पड़ गई है चेक करने की, थोड़ी सी आदत पड़ गई है तो दूसरों का चेक करो ना, अपना क्यों चेक कर रहे हो? अटेंडेंस का चेक किया है वो, मैं खाली बैठने के लिए आपने भगवत गीता रखी हुई है या फिर और किताबें रखी हैं, वो पढ़ो ना। क्यों कहते थे ना कि इसको चेक करने का क्या फायदा है? इसको डॉक्टर के कहते थे तो इसको अंदर तिजोरी में रख दो, काम ये आएगी। रखी हुई लाइट लैंप्स, ये पॉजिटिव, बेटे ने ला के दिए कि पॉजिटिव थॉट्स वगैरह ये पढ़ते रहो। तो मैंने कहा अब जब मूड करता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। वैसे रात को बीबीसी की न्यूज़ लगा लेता हूँ पूरा, जो अपना तो कान में ईयरफोन इसको लगाए। जो ऑक्सीजन मॉनिटर है, मैं इसको बोलूंगा कि आप इसको हटा लो अपने यहाँ से। हटा दैट इज दिया। आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिप्रेशन। इसको नहीं, देखते रहो ऊपर नीचे। कंसंट्रेटर के लिए बोला था डॉक्टर ने कि रात को लगाओ, चाहे भले ही आपकी ऑक्सीजन इंप्रूव होगी, रात को कंसंट्रेटर लगाओ। तो वो भी मैं लगा नहीं रहा हूँ 4-5 दिन से, और मेरी ऑक्सीजन नॉर्मल आ रही है। ठीक है। और अभी 97, 98 तो अभी आपको खांसने वासने में, बोलने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, अब नहीं होती। बीच में हल्की खांसी, कभी कभी खांसी तो मुझे कभी रही नहीं। हाँ, बोलने में जरूर दिक्कत होती थी, वो अब नहीं है। आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा मेरी टोन भी चेंज हो गई है। कई लोगों से टेलीफोन बात करता था तो ठीक से बात नहीं कर पाता था, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ एनर्जी सी आ गई है। लेकिन अभी मुझे रिकवरी में फुल जो मैं है उसमें लगता है अभी 1 महीना और लग जाएगा, वेट वगैरह गेन करने में। तो अब आप लोगों से मिल रहे हैं क्या? हाँ, लोग खुद ही आ जाते हैं मिलने के लिए यहाँ, तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता कि भाई क्यों हालचाल पूछने सब आ जाते हैं। कॉल्स आती हैं, मैं उनको सेव कर लेता हूँ। बाद में जब मुझे लगता है तब मैं उन सेव की भी कॉल्स पे खुद ही कॉल बैक कर लेता हूँ। आप एक्सरसाइज करते हैं अभी आजकल कुछ, मतलब फिजियोथेरेपी के अलावा कुछ? फिजियोथेरेपी हो रही है, एक्सरसाइज मैं करता हूँ। ऐसे ही इस पे चलने की कोशिश करता हूँ बेड पे भी, और बेड पर बैठ के सीधे खड़े होने का मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। और एक वो ब्रीदिंग का है, सांस का है, ये इस तरह से। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी हो रही होगी? ब्रीदिंग है, स्पाइरल एक ये लिया हुआ है, स्पाइरल वाला। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहे हैं। ये स्पाइरोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है इसी से इम्प्रूवमेंट हुआ है। हॉस्पिटल में भी ये स्पाइरल का बड़ा मैं यूज करता था इसको। इनफैक्ट जिसको भी लंग्स की हल्का सा भी इशू है उसको ये एक्सरसाइज हर रोज करनी चाहिए। एंड योगा में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई थिंक हमारे साथ केडी जोशी हैं, स्माइल कर रहे हैं नीरज को देख के, तो उनसे पूछते हैं कि योगा में लंग्स का क्या है, और जो सांस लेने का अंदर और बाहर, जो योगा में सबसे ज्यादा सांस रोकते हैं और छोड़ते हैं, सारी टेक्निक योगा की वो है। तो आप कुछ इसमें बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद बोलने के लिए, मेरे को अवसर देने के लिए। तो मैंने अभी नीरज जी से पूछा भी था कि आप प्राणायाम करते हैं, तो हल्के हल्के प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम वगैरह। तो थोड़ा जो फिर स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर दूसरे प्राणायाम भी कर सकते हैं। जैसे बताया आपने, हाथों को बाहर फैलाना, सांस भर के बहुत भीतर लाना। दूसरा इसी का और भी है, इसमें जैसे हाथों को कंधे के नीचे रख जाए, फिर आगे पीछे सकते हैं, आगे पीछे। इस तरह से। और दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर एक नीचे ऐसे करके यूं ऐसे एक्सपेंड, राइट साइड भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इससे आपके फेफड़े में चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, बाहर से, भीतर से, चारों ओर से एक्सपेंड होगा। तो ये कर सकते हैं आप, ये एडिशन है इसका। और ये तो करते हैं आप, ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर ले जा करके यूं। तो जोशी साहब, आपने एक्सरसाइज बता रहे हो, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कब सांस लेनी है और कब छोड़नी है। एक एक्सरसाइज करने के लिए अगर आप नीचे झुक रहे हो या फिर आप ये कर रहे हो, तो किस समय आपने सांस लेनी है और किस समय छोड़नी है। आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। नहीं, इसमें ऐसा है, जब भी आप एक्सपेंड करते हैं तो सांस भर के जाइए, जब आप भीतर आ रहे हैं तो सांस। तो एक्सपेंशन तब होगा जब आपकी बॉडी में सांस जाएगी, हवा जाएगी। जब भी एक्सपेंड करेंगे सांस भर के करिए। तो जैसे जब हाथ ऊपर करते हैं लोग, तो उसको कहते हैं सांस लीजिए और फिर नीचे आएंगे तो छोड़िए, उल्टा नहीं करना। ऊपर फिर छोड़ते हुए नीचे। अच्छा, ये आर्ट ऑफ लिविंग में भी सिखाते हैं वो, सुदर्शन क्रिया वगैरह में और प्राणायाम में। सौरभ जी, मैं एक चीज बोलूं, 1 मिनट? बोलिए। सर, एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की है, मैं पहले भी करता था और उस टाइम बीमारी के टाइम में भी मैं करता था। ये सांस लेना छोड़ने की प्रैक्टिस के अलावा ना, मैंने एक देखा है, कुंभक क्रिया होती है, सांस रोकना। हम अपनी कितनी देर ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं, वो एक हमारे शरीर को ना ताकत देता है
और आप देखेंगे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम हैवी काम करेंगे, वेट लिफ्टिंग करते हैं, या जैसे अभी कभी गाड़ी को पुश करना है, कुछ सामान उठाना है, उसमें हमेशा हमारा ऑटोमेटिकली ना ब्रीथ होल्ड होती है बॉडी में। जब हम होल्ड करते हैं ना, तब हमारे शरीर को ताकत मिलती है। ये लोग कई चीज इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। ये ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए कि कितनी देर होल्ड कर पाते हैं, उससे भी काफी पावर मिलती है। बिल्कुल। ब्रीथ एंड होल्डिंग, स्विमिंग में भी जब आप स्विमिंग सीखते हैं तो उसमें भी आपको ब्रीथ सांस को कंट्रोल करना इज ऑल स्विमिंग ऑल्सो। अगर आपको सांस को कंट्रोल करना आ गया तो आप स्विमिंग आराम से सीख सकते हैं। तो हम वापस आएंगे लाइव एक्सपीरियंसेस पे जिसका ये सेशन है। तो नीरज जी, आप क्या मतलब अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग बाग जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, मुझे लगता है वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और जो वैक्सीनेशन हो जाता है ना, वो भी लोगों की साइकोलॉजी चेंज कर देता है। मुझे भी एक डोज लग चुकी थी वैक्सीन की, कोवैक्सीन की। आपको, अच्छा, हाँ, वैक्सीन पे आपने सही बताया, आपको एक डोज लगी थी वैक्सीन इसके पहले? एक डोज लगी थी, और वो मुझे 5 मई को सेकंड डोज लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही मुझे ये तो इन्फेक्शन क्या हो ये गया। कोविड आपको वैक्सीन सेंटर से हो सकता है, या फिर एक्सपोजर बाहर से था, या फिर आपको बाद वैक्सीन के बाद कोई फीवर आया था आपके यहाँ पे? हाँ, थोड़ी वीकनेस, फैटिक तो आया था, फीवर तो कोई नहीं आया। तो 5 मई को आपको वैक्सीन लगी थी, और आपको फर्स्ट सिम्टम कब आया था? नहीं, 5 अप्रैल को मुझे लगा था फर्स्ट डोज, लेकिन 5 मई को सेकंड डोज लगनी थी, और मुझे सिम्टम आ गए थे 1 मई को। ओके, सो तकरीबन 25 दिन बाद 25 दिन बाद आ गए थे। और मुझे लगता है कि वो एयरबॉर्न हो गया, या तो उससे पहले बात भी चल रही थी कुछ कि ये आपकी एयरबॉर्न। वाइफ को और आपकी मदर को वैक्सीन लगी थी? नहीं लगी थी, उनको अग्रवाल साहब ने मेल के द्वारा होल्ड द वैक्सीन करके उन्होंने भेजा था। मैंने थोड़ा सा, उसको इन्फेक्शन था वाइफ को, वाइफ को CRP। इन्फेक्शन था? हाँ, CRP थी 4 के करीब। तो डॉक्टर के अग्रवाल जी ने बोला था अब ये वैक्सीन को थोड़ा सा डिले कर दो, तो हमने फिर उसको डिले कर दिया। लेकिन पता लगा वैक्सीन के बाद भी लोगों को हो रहा था। ओके, और उनको प्रायर इनको इन्फेक्शन था, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन के समय वैक्सीन वाज नॉट रिकमेंडेड दैट टाइम। एंड तो आपको वैक्सीन, तो ये भी हो सकता है कि आपको वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा सा बूस्ट मिला हो, कि आपको थोड़ा सा इतना सिवियर, आपको वैसे तो सिवियर कोविड हुआ था काफी, 22 आउट ऑफ 25, 21, 22 आउट ऑफ 25 इज अ वेरी सिवियर कोविड। वेरी सीवियर, बिल्कुल। वो कैसे हुआ इन्फेक्शन मुझे समझ में नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट था। अच्छा, एक चीज और है इसमें, RT-PCR मेरी निगेटिव आई थी, सिम्टम्स बुखार सब आ रहे थे, लेकिन RT-PCR के रिजल्ट निगेटिव आ रहे थे। तो वो जो एक डॉक्टर लखनऊ में थे, वो कह रहे थे वो ये इसका क्लियर प्रूफ है कि ये डेल्टा वेरिएंट है, इसमें RT-PCR निगेटिव ही आता है और ये बहुत सीवियर में चेंज हो जाता है। क्योंकि एस जीन वगैरह उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे वो RT-PCR में। कि बाद में मेट्रो हॉस्पिटल में जब वो टेस्ट वगैरह हुए तो वहाँ पे एक बार पॉजिटिव आया फिर बाद में, लेकिन CT स्कोर 31 था, तो बहुत ज्यादा वायरल। तो आप ICU में कितने दिन रहे थे? ICU में 1 मंथ करीब। 1 महीना आप ICU में रहे थे? 1 महीना ICU में। वो शुरू में तो डॉक्टर्स ने डरा ही दिया था कि वो 3-4 दिन है बस आपके पास, लेकिन आई वॉज लाफिंग, क्योंकि मुझे अंदर से नहीं लग रहा था कि मैं 3-4 दिन बाद कहीं ऊपर चला जाऊंगा। मुझे तो लग रहा था कि आई विल सर्वाइव। और आपके टोटल हॉस्पिटल में कितने दिन थे आपके? टोटल हॉस्पिटल में 45 डेज रहा हूँ। एक और आप हाई फ्लो पे कितने दिन थे? हाई फ्लो पे भी मैं करीब एटलीस्ट 25 डेज। और बाईपैप पे? बाईपैप पे शुरू में लगाया, लेकिन बाद में मुझे वो टॉलरेट नहीं हुआ। पता नहीं, ऐसा लगता था कि मेरी आज़ादी कोई छीन रहा है। तो वो नर्सेस को भी मैं कह देता था वैसे झूठ, वो कहते थे हाँ लगाया, मैंने कहा लगा लिया। आप अपना इलाज खुद भी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे आप अपना इलाज करने की? हाँ, शुरू में की थी, लेकिन वो डांट खा दी, क्योंकि वो अग्रवाल साहब के जो प्रोग्राम सुनते हैं ना, वो अपना इलाज ज़्यादा शुरू कर देते हैं। वही वाला असर मेरे पे भी आ गया था। तो मैं पहले CT स्कैन के लिए मना करने लगा। वो मना करते थे ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, इतने एक्सरे के बराबर होता है। क्या होता है ना, देखो, आपने कुछ सीखा, उसको कुछ और समझा और कुछ और करा, वहां पे जाके डांट खाई। जो आपका इलाज है वो घर का इलाज था, आपने हॉस्पिटल में जाके करने की कोशिश करी, तो डांट तो खाओगी। दूसरा, बट एक चीज मेरे को खुशी है ये जान के कि आपको एग्जैक्टली ये पता है कि आप कितने दिन हॉस्पिटल में थे, कितने दिन ICU में थे, कितने दिन कहाँ पे थे, क्या आपके साथ बीता। एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच थी। कहीं पे भी मेरे को ये नहीं लगा कि आप कहीं पे नेगेटिव थे, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा रीजन है
जब भी कुछ होता है, जो भी लिखा है वो तो है, बिल्कुल, जो होना है होगा, वो तो होगा ही। जो लेकिन जो आप कर सकते हो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, वो एक 1% आपको डिफरेंट बनाएगा बाकियों से। जो एक 1% आपका पॉजिटिव है, देखो डॉक्टर्स के हाथ में एक बहुत ज्यादा एक लिमिटेड ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर आप अंदर से अपना हार्ट छोड़ दो तो आप कुछ कर नहीं सकता कोई इंसान। हाँ, वही हुआ था। वो डॉक्टर्स ने जब फोन किया छोटे ब्रदर को कि ये तो बड़े क्रिटिकल है, इनके चांसेस नहीं है कुछ भी, तो ब्रदर ने मुझे फोन किया, तो मैंने उसको गाना सुनाया फोन पे, मैं गाना गाने लगा। वो कह रहे ये तो बिल्कुल ठीक है, और वो सो गया। कह रहा नहीं नहीं, ये डॉक्टर वैसे ही कह रहे हैं। हालांकि मैं क्रिटिकल था, लेकिन मुझे कुछ तुकबंदी आ रही थी, कविताएं वगैरह लिखता हूँ, तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। और वो पेशेंट भी कह रहे थे भाई ये तो बड़े मस्त रहते हैं। मैंने कहा भाई मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस था, पॉजिटिव अप्रोच थी। और वो वाकई में उसी तरह से अगर हम प्रिटेंड करें ना, ये मैंने एक सीखा, जैसा हम होना चाहते हैं वैसा प्रिटेंड करें, वैसा एटीट्यूड बना लें अपने माइंड का, तो ऐसी चीज़ें फ्यूचर में होने लगती हैं। मतलब वी आर, जो भी हमारे साथ होता है ना, वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो अब आपको तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 3 महीने हो गए हैं। जी जी बिल्कुल 3 महीने हो गए हैं। और लेकिन डॉक्टर्स ने 6 महीने बोला था वहाँ कि आप 6 महीने में रिकवरी होगी, ये मत सोचो कि आप यहाँ अभी ठीक हो गए हो। लेकिन मुझे तो लग रहा है आज जैसे मैं चलाऊं कि मैं अब बस 2-4 दिन में तो मैं फिट हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से मैं वॉक किया, अपने आप ही वॉक किया मैंने खड़े होके, तो ये भी सरप्राइज हो गया अटेंडेंट की, ये कैसे चल रहे हैं अपने आप ही। सुनील जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आप ब्लड लेने जाते हो आज की तारीख में, क्योंकि इतना ज्यादा फियर है हॉस्पिटल जाने में या सेंटर्स में जाने में, तो वो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? मतलब हाउ यू मेक श्योर दैट यू आर सेफ व्हेन यू आर डोनेटिंग द ब्लड? सर अभी मैं बताऊंगा कि केवल हम डोनेट करने के अलावा ना, हम लोग फरीदाबाद में अभी कैंप भी लगा रहे हैं, हर हफ्ते कैंप लगा रहे हैं। और अभी पूरा उसमें प्रिकॉशन रख रहे हैं, अपना सैनिटाइजेशन का, डिस्टेंसिंग का, मास्किंग का। और अभी आज की डेट में हम क्या है कि कहीं से अगर मिनिमम 10 डोनर्स भी हैं तो भी उसके लिए हम कलेक्शन के लिए करवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा मतलब चल रहा है, और लोग आगे आ भी रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। तो ये तो हम कहेंगे कि बहुत थोड़ा, बल्कि क्या है कि कोविड के बाद मैंने देखा है कुछ लोगों के अंदर ना हेल्प करने की इच्छा भी जागृत हो रही है, वो देख रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है ना कि जैसे हमारी हेल्प हुई है तो आज हम आगे जाएं। तो ऐसे हमें बहुत नए डोनर्स भी मिल रहे हैं, यंग डोनर्स भी मिल रहे हैं, और लड़कियां भी आ रही हैं आगे, लेडीज भी आ रही हैं। और हमारे यहाँ फरीदाबाद में ना एक लेडीज का भी एक ग्रुप बनाया गया अभी डोनर्स का। पीछे उन्होंने एक लेडीज ने ही अपना एक ब्लड डोनर का वो अरेंज किया था। तो आप हैरान होंगे, उसके हमें उस दिन इतनी खुशी हुई। एक जो जहाँ पे डोनेशन कैंप लग रहा था फरीदाबाद में, मेन चौक है नीलम चौक, तो वहां पे हमारी रेड क्रॉस की बस खड़ी करके हमने कैंप लगा रखा था। तो एक जोमेटेक और डिलीवरी बॉय वो पूछने के लिए रुका कि यहाँ क्या हो रहा है। हमने मतलब बताया कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है। तो वो डिलीवरी बॉय ना, वो डिलीवरी करके आया था, उसने पहले हमारे ब्लड डोनेट किया, फिर आगे ड्यूटी पे गया। तो एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि लोग आगे आ रहे हैं इस तरह से। तो इसमें मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे आए, ब्लड डोनेशन करें, और एक अपने आप को बड़ी, जैसे नीरज जी ने बताया ना, पॉजिटिविटी मिलती है। तो लोगों को आज के टाइम में पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है, चाहे बीमार हो चाहे ना हो। तो इसलिए डोनेशन के लिए जितना आगे आएंगे उतना समाज के लिए अच्छा रहेगा। ये वो इंसान बोल रहा है जिसने 75 बारी डोनेट करा है, जिसने 75 बारी अपने हाथ पे सुई चुभाई है। मुझे बचपन में बहुत डर लगता था, फिर आई थिंक वो फियर निकल गया था। विवेक जी, आप कुछ जुड़ना चाहेंगे हमारे साथ? कॉन्वर्सेशन अच्छी चल रही है। आप कुछ सवाल यहाँ पे जो भी बैठे हैं ऑडियंस, इनमें से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? इट इज अ रियल टाइम एक्सपीरियंस। आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं या सर नीरज जी को एक सलाह दूंगा मैं, 1 मिनट। नीरज जी अभी कह रहे थे ना कि मैं अभी आज ठीक हो गया हूँ जल्दी। मैं नीरज जी से कहूंगा, नीरज जी मेरे को भी बहुत वीकनेस थी, और मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है, इसमें ना थोड़ी जल्दबाजी मत करिएगा। मतलब अपना क्वेश्चन अपना रखना है, क्योंकि
मैंने 1-2 केसेस में देखा है कि थोड़ा सा जैसे अगर नेगेटिव वो लेंगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो आप थोड़ा सा ठीक है पॉजिटिव रखिए, लेकिन जो भी इम्प्रूवमेंट करिए स्लोली मतलब एकदम से आप मतलब वो मत करिएगा, क्योंकि मैं इस फेज से निकला हूँ। आप जैसे कह रहे हैं ना, मेरे से भी नहीं चला जाता था और बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं रिक्वेस्ट है यही। जी जी जी, हमारा तो ग्रेजुअल तो यही हो ही है रहा कि भाई प्रिकॉशन तो रखना चाहिए, क्योंकि कोविड दोबारा भी हो सकता है। जी जी, ये भी हम लोग को इसके बारे में भी ध्यान रखना होगा कि ये नहीं कि एक बार कोविड हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है। अब तो काफी लोगों को कोविड दोबारा हो चुका है जिन लोगों ने प्रिकॉशन नहीं रखा था, तो ये भी रखना बहुत जरूरी है। और ये तो बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों की बात सुन के, क्योंकि इससे काफी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और इससे ये भी पता चलता है कि जब आप एक बार डॉक्टर साहब के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, तो फिर उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। जी जी, बिसाइड्स कीपिंग योर ओन पॉजिटिव माइंड। तो और कोई क्वेश्चन सौरभ, किसी के क्वेश्चंस हैं ऑन द लाइन? नहीं, आई थिंक सारे लोग सुन रहे हैं आज की तारीख में। इट इज अ रियल टाइम, आई एम गेटिंग चैट मैसेजेस में देख रहा हूँ मैं, काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है। एंड आई वुड से वी सल्यूट to all the COVID warriors from our platform by this medium. You guys have really done a commendable job, and we are seeing not only COVID warriors, COVID survivors, COVID winners, but everybody who was on the frontline workers helping. एक डॉक्टर जो है सिर्फ कुछ लोगों को मोटिवेशन कर सकते हैं. They have a lot of things on the plate. When we talk to a doctor, हम expect करते हैं कि वो हमारे को full time दें. बट पेशेंट, आप एक डॉक्टर से डील कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर काफी सारे पेशेंट से डील कर रहे हैं. सो आई थिंक डिप्रेशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और थिंग विच पीपल आर फाइटिंग. बट ऑल्सो पेशेंस जो है वो खत्म हो गया है लोगों में. पेशेंट से काफी चीजें होती हैं. स्माइल करके एक सवाल पूछना और लड़के एक सवाल पूछना में बहुत फर्क होता है. अगर आप एक सवाल पूछो स्माइल करके और उसका आंसर नहीं आया आपके पास, तो ये नहीं कि आप उसके बाद लड़के आंसर पूछो. दोबारा अगर स्माइल करके पूछो तो बहुत फर्क पड़ता है. तो दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच विच आई वुड सजेस्ट पीपल शुड आस्क. एंड वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट whenever we make a judgment, we should step into the another person's shoes and then make a decision whether वो सही था या गलत था. So with this note, I would like to have some closing comments from Sunil ji first. क्या आप एडवाइस करते हैं? I hope कि थर्ड वेव ना आए. I hope ये सारा चीज सेटल हो जाए आज की तारीख में. I hope life gets back to normal. But we are all ready if anything happens. We have seen the worst. There is no worst than this what happened. First wave was lighter. Second wave actually shocked the world. It was a very, very painful what happened. So I would say let's do an end. Let's take support from people for masking, for social distancing, for hygiene, for hand wash, for everything what you can do. Let's not go into the public places without mask. I am seeing a lot of public places, crowded places people are just having a normal attitude. अगर नहीं भी है कोविड, खत्म भी हो गया, तो भी मास्क पहनने में क्या जा रहा है? या फिर अगर मास्क आपने पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग करने में क्या जा रहा है? तो विद दिस नोट आई वुड लाइक अ मैसेज फ्रॉम दीज पीपल हु हैव जॉइंड इन. सो आई वुड टेक सुनील जी एंड देन नीरज जी, जोशी जी भी बोलिए योगा के बारे में क्या आप क्लोजिंग कमेंट दे सकते हैं. देन विवेक जी. सुनील जी बोलिए. मेरा मैसेज ये रहेगा सर कि हमें लीनियंसी नहीं रखनी है. अभी भी सेकंड वेव में भी मैंने एक चीज देखा था, हमारी गैर सावधानी के वजह से ये ज्यादा फैला था. तो हमें अभी भी प्रिकॉशन अपनी पूरी रखनी है. अपने फैमिली को बचाना है, अपने समाज को बचाना है और पूरा ध्यान रखना है. और दूसरा, अगर कहीं पर आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए टोकता है, मास्किंग के लिए टोकता है, उससे लड़ाई करें ना करें, वो आपका भी और दूसरों का भी भला करने की बात करता है. ये मैंने लोगों को देखा है कि कुछ अगर कोई टोकते हैं तो उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं.
तो ये दूसरा रिक्वेस्ट है मैसेज है सुनील जी, आपकी तरफ से यह आना चाहिए था कि आगे आइए और हेल्प करिए, आगे आइए, हेल्प करिए। बाहर बाहर आप तभी निकलिए अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं। जो आपके घर में, आप डोनेट करिए गरीबों में। लोगों को खाना नहीं मिला था, लेबर को खाना नहीं मिला था, कुछ भी हो सकता है अपनी तरह से। 1% एफर्ट इज ऑल्सो मेक सेंस। सर मैं एक चीज, एक मिनट इसी बात पे मैं कहूंगा सर, लोगों का मैं अगर हेल्प करने में, देखिए कई लोग कर रहे हैं, और लेकिन सबसे पहले ना शुरुआत अपने यहाँ से करें। कई लोगों का मैं देख रहा हूँ अपने डोमेस्टिक वर्कर्स की सैलरी काट लेते हैं, उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ हर एक को ना अपने क्लोज में, रिलेशन में, अपने वर्कर्स में, अपने स्टाफ में, सबसे पहले तो वहां आपने हेल्प करिए। लोगों का मैं देख रहा हूँ, कई हमारे नोटिस में आए हैं कि कोई अभी जैसे लॉकडाउन, ये सेकंड लॉकडाउन हुआ था, उसमें डोमेस्टिक अपने सर्वेंट से उनकी सैलरी काट लेते हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। अगर मतलब भगवान ने अगर आपको कैपेसिटी दी है तो आप उनके साथ शेयर करिए उनको। मैं कहता हूँ सैलरी के अलावा आप और भी फूड से या किसी भी में हेल्प कर सकते हैं तो करिए। बिल्कुल, बहुत छोटे सा अमाउंट होता है, इससे किसी को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। एंड अगर घर वालों और डोमेस्टिक आपके स्टाफ भी घर ही वाले हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो फिर बाहर वालों की सेवा करके दिखाने से क्या फायदा। बहुत अच्छा मैसेज है। आप किसी की सैलरी काट रहे हैं क्योंकि वो नहीं आ रहा, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो सैलरी उसकी ब्रेड एंड बटर है, आपके लिए वो सिर्फ एक हेल्प है। तो आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम, यस। एंड चैरिटी से खुशी भी मिलती है, पैसे काटने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर मतलब कोई काम छोड़ के चला गया है और नहीं है तो बात अलग है, बट अगर आप, कोई बंदा काम कर रहा है, किसी किसी रीजन की वजह से नहीं आ पा रहा है या कुछ हो रहा है, तो आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट। एंड जहाँ भी हम कर सकते हैं, वो आपके यहाँ पे काम कर रहा है, वो फैमिली छोड़ के आया हुआ है यहाँ पे, आपके यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहा है, काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, देयर इज अ रीजन ही इज डूइंग इट। एंड फॉर वो उस पूरे 30 दिन में जो पैसा मिलता है उसके लिए बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन हमारे लिए, लेकिन उनके लिए पूरा ब्रेड एंड बटर है, घर भेजते हैं। तो लेट्स नॉट डू दैट। आई एग्री विद यू। नीरज जी। तो सबसे बड़ी बात, जैसे अब प्लाज्मा और रेमडेसिविर के लिए तो WHO भी कह रहे हैं कि भाई ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं वो है। हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर, प्लाज्मा वगैरह के बारे में। बट जो वो प्रिकॉशन वाली बात है हम कि ट्रीटमेंट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम आपके सिर्फ एक लाइफ में आपका क्या मैसेज आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल जो प्रोटेक्टिव जो हमारा है, उसको हम मास्किंग वगैरह जो है उसको प्रॉपर यूज करें। और जो डॉक्टर अग्रवाल साहब ने एक वो फार्मूला दिया था सुमन के, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये सख्ती से करें। इसमें चाहे वो घर में हमारे डोमेस्टिक वर्कर हो या कोई भी हो, उसमें कोई लिहाज नहीं करना है। उनको बोलना है कि आप ये सैनिटाइज तो जरूर होके आइए और कम से कम मिलें। और एक चीज़ और है, केमिस्ट की जो शॉप में घुसते हैं ना लोग बाग, वहाँ मैंने देखा है वहाँ बड़ी गड़बड़ होती है। वो एक ही छोटी सी शॉप होती है और वहाँ पे जरूर इन्फेक्शन वहाँ लगता है लोगों को, तो वहाँ उसको अवॉइड करें। केमिस्ट के जाएं तो या तो एकदम बहुत कम पीरियड के लिए जाएं या ऑनलाइन मंगा लें। तो जितनी भी चीज़ें हैं, या क्लिनिक में भी जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, वहाँ भी पेशेंट बैठे रहते हैं, तो वहाँ या तो बाहर खड़े हो जाएं क्लिनिक से, डॉक्टर साहब से मिलके और थोड़ी एकदम जल्दी से आ जाएं वहाँ से। इवन डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, इवन जहाँ पे आप टेस्टिंग करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 90% आपको चांस है इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे खड़ा ही इसीलिए क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो वो भी एक मेरे ख्याल में जस्ट लाइक ए बॉम्ब है वो वायरस के लिए। और जैसे वो कहावत है ना कि तैराक ही डूबता है, तो इसमें ज्यादा जिनको नॉलेज है ना, वो बहुत, मैंने देखा है, लापरवाह हो जाते हैं। वो री इन्फेक्शन का सोच के चलें कि री इन्फेक्शन अभी भी हो सकता है। थैंक यू नीरज जी। जोशी जी, क्योंकि आप हैं यहाँ पे योगा के हैं, सो जस्ट वन लाइन मैसेज फ्रॉम योगा साइड। योगा में ऐसा है, अधिकतर कोशिश करें कि किसी के साथ जुड़ के करें, चाहे वो ऑनलाइन वीडियो हो या फिर फेसबुक है या जूम है, क्योंकि अकेले में जब हम करते हैं तो एक तो फिर ठीक से नहीं कर पाते हैं, दूसरा मन भी नहीं लगता है थोड़ा सा। तो योग करें, लेकिन जरूर करें थोड़ा, क्योंकि अभी तो जैसे इस बार तो जब से ये क्या कहते हैं बाहर लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो उसमें तो सब घर में ही योग कर रहे हैं। हम लोग भी आजकल अभी भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तीसरी लहर का अभी भी बड़ा आशंका है। हम लोग भी ऑनलाइन ही करवा रहे हैं आजकल, घर पे ही करा रहे हैं। हम लोग भी बाहर नहीं निकले हैं, कुछ लोग निकले हैं, लेकिन अभी भी हमें हिम्मत नहीं आ रही, जैसे तीसरी लहर खत्म न हो, हम लोग अभी ऑनलाइन में है। तो जब योग करें जरूर करें, जुड़ के करने में थोड़ा सा मन भी लगता है दूसरे को देख के, और वहाँ पे कोई टीचर होता है, गाइड भी करता है, और हम कर पाते हैं सभी प्रकार के आसन। अकेले करने में मन नहीं लगता है, तो जुड़ के करें। थैंक यू। Vivek sir, would you like to close the session?
I would like to thank all the distinguished guests who joined the discussion. Sunil ji, Neeraj ji, Joshi ji. Thank you for taking out your valuable time and sharing your experience, and Joshi ji giving his advice on yoga, how to be careful. इससे कम से कम लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा कि भाई कैसे हम लोगों को कोविड अगर होता और क्रिटिकल भी होता है तो हम अपने को कैसे बचा सकते हैं. एट द सेम टाइम ये भी हम लोग को इससे हम लोग को सीख मिलती है कि हम लोग को कोविड से बचने के लिए हर तरीके की प्रिकॉशंस लेना आवश्यक है, जो डॉक्टर के साहब ने हम लोग को बताई थी. और कोविड गया कहीं नहीं है, कोविड यही है, अभी कहीं आगे पीछे छुपा हुआ है, और कब वो खूब जोरों की फिर फैलेगा हम लोग को किसी को नहीं मालूम. इसलिए इट इज माय एडवाइस, प्लीज डू केयर ऑफ yourself and your family by taking all the precautions of COVID. Thank you. Thank you, sir. With this note, we would like to end this session. And thank you everyone for joining. We will be back. This was our 63rd session, and the non-stop we had 22,843 session. And with this note, we would like to just thank everyone for joining in. And please move out, help people whom you can. कुछ भी करो, लोगों की help करो, and create a positive message, create a positive environment. And if anything goes bad going forward, we are ready to fight. Thank you everyone for joining in. Thank you. Thank you, sir.